السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 12۔ چاندنی کالج سے باہر نکلی اور گھر کی جانب چل پڑی۔ ابھی اس نے ایک سڑک ہی کراس کی تھی کہ اس کو سامنے سے سالار آتا دکھائی دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، جبکہ سالار نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو وہ خاصی نروس لگنے لگی تھی، اور ویسے بھی وہ آج کل کافی سوگوار بھی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے سالار، چاندنی نے ہمت کر کے کہہ دیا تھا، لیکن ارد گرد دکاندار اور گزرنے والے لوگ ان کو عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ سالار نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور چاندنی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، لیکن یہ جگہ اور ماحول ٹھیک نہیں ہے، کہیں بیٹھتے ہیں۔ چاندنی اس بات کو سن کر اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی تو سالار کو بہت ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھوں یا محض اتفاق؟ سالار نے چاندنی سے پوچھا تو اس کے چہرے پر سوگواریت کی ایک اور تہ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے سالار کی طرف دیکھے بغیر ہی سامنے دیکھا اور بولی، خوش قسمتی کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہوتا سالار۔ وہ ساتھ ساتھ چلتی بھی جا رہی تھی، لیکن بدقسمتی اور غم کبھی بھی یکدم نہیں آتے۔ یہ آپ کا دروازہ مسلسل کھٹکھٹاتے رہتے ہیں اور تب تک واپس نہیں جاتے جب تک آپ دروازہ کھول نہ دیں۔ چاندنی، میں تمہاری طرح پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے تھوڑی ہی عمر میں بہت سی دنیا دیکھ لی ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک پارک میں آ گئے تھے۔ سالار نے پارک میں بنے فاسٹ فوڈ سینٹر کا رخ کیا تو چاندنی کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ وہ خالی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ ویسے بھی اس فوڈ سینٹر میں شام کو رش زیادہ ہوتا تھا۔ اب تو وہ تھے اور یا پھر کالج سے بھاگے ہوئے 2-3 جوڑے اور تھے۔ آپ نے مجھے پرپوز کیا ہے؟ چاندنی نے اپنا بیگ میز پر رکھتے ہوئے سالار کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ چاندنی، سچ بتاؤں تو میں نے تمہیں پہلی بار شرجیل کی شادی پر دیکھا تھا، اور تب سے میری حالت عجیب سی ہو گئی ہے۔ چاندنی نے اس کی طرف دیکھا اور ہولے سے بولی، تو کیا آپ اپنی عجیب سی حالت کو تسکین دینے کے لیے مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ اس کا سوال بہت گہرا تھا، لیکن سالار کو کافی دکھ ہوا تھا کہ وہ اس کو غلط سمجھ رہی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں چاندنی، جس مریض کو ڈاکٹرز موت کا عندیہ دے دے لیکن ساتھ ایک دوائی بھی تجویز کر دے، تو کیا وہ مریض موت کو گلے لگانے سے پہلے دوائی کو ترجیح نہیں دے گا؟ اس کا جواب بھی عجیب اور گہرا تھا۔ چاندنی نہ سمجھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، اگر ہم سیدھی سیدھی بات کر لیں تو بہتر ہوگا سالار احمد۔ کیوں نہیں چاندنی، پلیز، تم میرے بارے میں جو بھی پوچھنا چاہتی ہو بلا جھجک پوچھ سکتی ہو۔ سالار احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے بارے میں ہمیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شمع آنٹی میری ماں جیسی ہے اور مجھے ان پر اعتماد ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کو اپنے بارے میں مکمل تفصیل بتا دوں۔ ویٹر کو آتا دیکھ کر سالار احمد نے چاندنی سے پوچھا، کیا لوگی چاندنی؟ کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو۔ مجھے تو تم… چاندنی نے اس کے خاموش ہونے پر بات کی گہرائی سمجھتی ہوئی نظریں اٹھا کر جھکا کر رہ گئی تھی۔ ویٹر کو آرڈر کرنے کے بعد چاندنی نے سالار احمد کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں ہجڑوں کے پاس پلی بڑھی ہوں سالار، میں جانتا ہوں میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ مجھے پیدا ہونے پر ہی کوئی ان کی چوکھٹ پر پھینک گیا تھا۔ چاندنی نے کہا تو سالار احمد بے اختیار پہلو بدل کر رہ گیا۔ ان لوگوں نے مجھے ماں اور باپ بن کر پالا ہے اور پڑھایا لکھایا ہے، اور میری ہر ضرورت کا اس طرح خیال رکھا ہے کہ جیسے میں ان کی اپنی ہی اولاد ہوں۔ شاید اتنا کچھ میرے ماں باپ بھی میرے لیے نہ کرتے۔ میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے چاندنی، اور ایسی باتیں میرے پیار اور محبت کی راہ میں کوئی بھی دیوار کھڑی نہیں کر سکتی۔ سالار اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، میرے باپ کا ملاپ مجھ سے ایک ڈرامائی انداز میں پچھلے دنوں ہو گیا ہے، جو کہ 25 سال بعد مجھے ملے ہیں۔ سالار احمد کے لیے یہ خبر حیران کن تھی۔ وہ خوشگوار انداز میں بولا، ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے اور ایک معجزہ ہے۔ کرامات اور معجزے تو ولیوں اور پیغمبروں کی میراث ہے سالار احمد، ہم تو عام سے گناہگار انسان ہیں۔ وہ سوگواری سے بولی تھی، گلیوں میں گھوم پھر کر در در سے بھیک مانگنے والا اندھا فقیر جو کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں ہے کی صدائیں لگایا کرتا تھا، وہی میرا باپ ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن تھی، کیونکہ سالار احمد نے کئی بار بادشاہ کو ان گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ مجھے بھی مل گئے ہیں۔ چاندنی نے پھر ہجڑوں اور بادشاہ کی زبانی جو کچھ بھی سنا تھا وہ آہستہ آہستہ سالار احمد کو سنا دیا تو وہ حیرانی اور دکھ سے چاندنی کی طرف دیکھنے لگا۔ چاندنی کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں نے سالار احمد کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے چاندنی کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ اور بھی غمگین ہو گئی اور آنسوؤں کو بہنے دیا۔ سالار احمد اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ وہ اس کو تسلی دیتا ہوا بولا،
चांदनी, क्या मुझसे शादी करोगी? चांदनी ने रोई हुई आंखों से उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा रहा था। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो रंधी हुई आवाज़ में बोली थी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना, बस क्या मुझसे शादी करोगी? सालार अहमद ने फिर पूछा तो चांदनी उसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुई बोली, मेरा एक रिश्ता रिजेक्ट भी हो चुका है। मैं समझा नहीं। वो चांदनी की बात ना समझा तो चांदनी ने अबीद रज़ा और अपनी लव स्टोरी की तमाम बातें उसको सुनाना शुरू की। तो हैरत और इस्तेजाब से सालार अहमद की आंखें कभी खुलती और कभी बंद हो रही थी। उसने पूरी बात सुनकर चांदनी का हाथ छोड़ दिया तो वो उदास होकर उसकी तरफ देखने लगी तो वो बोला, चांदनी, क्या तुम सच कह रही हो कि तुम उस अबीद रज़ा से मोहब्बत करती हो जो वहाँ मीर का बेटा है, जो कि टेक्सटाइल मिल्स के मालिक है? चांदनी एक लंबी सांस फिजा में छोड़ती हुई बोली, मैं अबीद रज़ा से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब लेकिन अब। वो उसकी बात उचकते हुए बोला, लेकिन अब उससे मोहब्बत करूँगी जो मुझे दिल से चाहेगा और मेरी तमाम मुसीबतों समेत मुझे अपना जीवन साथी मानेगा। सालार अहमद मुस्कुराता हुआ बोला, चांदनी, अगर तुम्हें फिर वहाँ मीर की ही बहू बनना पड़े तो? चांदनी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए थे। वो उदास और परेशान तो पहले ही थी, लेकिन अब गमज़दा भी लगने लगी थी। वो हिम्मत और अल्फाज मुश्तमा करती हुई बोली, तो फिर मैं जहर खा लूँगी, लेकिन वह मीर की बहू नहीं बनूंगी। चांदनी, अब तुम मेरी हो और तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरी है। तुम्हारा हर दुख, दर्द, गम, सोग और खुशी मेरी है, लेकिन अब गम, आंसू और सोग वाली कोई भी बात नहीं होगी। उसने एक बार फिर चांदनी का हाथ पकड़ा और बोला, अब तुम मेरे बारे में वो सच सुनो जो माँ जी यानी शमा माँ जी को भी इल्म नहीं है। सिर्फ मूसा ही सच्चाई को जानता है, क्योंकि वो मेरा सच्चा दोस्त है। बताऊं? सालार अहमद ने उसकी आंखों में देखा और हौले से बोला, मैं वहाब मीर का बेटा हूँ, लेकिन हिना बेगम मेरी माँ नहीं है। ये कहकर वो खामोश होकर अपनी बात का रद्द-ए-अमल देखने के लिए चांदनी के चेहरे पर तासुरात देखता रहा। तो चांदनी ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन सालार के हाथ की गिरफ्त मजबूत थी। मेरी पूरी बात सुन लो चांदनी। सालार अहमद ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू की तो चांदनी के तासुरात भी वही हो रहे थे जो कि सालार अहमद के चांदनी की कहानी सुनकर। सालार अहमद ने अपनी तमाम दास्तान बयान करके चांदनी को बता दिया कि अब तुम उसी घर की बहू बनोगी और एक धड़ल्ले से उस घर में राज करना, क्योंकि अब वो लोग उस घर से जाने ही वाले हैं। चांदनी और सालार की कहानी तकरीबन एक जैसी ही थी, लेकिन मेरा मतलब है कि हमारी शादी तभी होगी जब हम माजी यानी मेरी माँ को ढूंढ लेंगे। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी इस बात में सर हिलाता हुआ बोला, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम मिलकर माजी को ढूंढेंगे। बाबा ने बताया है कि वो एक बार उनको हमारी गली में ही मिल चुकी है। इसका मतलब है सालार कि वो जिंदा भी है और ठीक भी है। चांदनी का लहजा पुरजोश था और अब उसको सालार की मोहब्बत पर भी एतमाद था, क्योंकि वो अब खुलकर सब कुछ बता चुका था और फिर शमा बीवी भी उसकी ज़मानत दे रही थी, लेकिन अब तो चांदनी का दिल भी ज़मानत दे रहा था। उसने दिल को जामिन बनाकर सालार का हाथ पकड़ा और बोली, एक वादा और करो सालार। क्या? वो इस पर कुर्बान होता हुआ बोला, मैं उस घर में जब दुल्हन बनकर जाऊं तो अबीद रज़ा उस घर में मौजूद होना चाहिए। उसको जलाना चाहती हो? सालार हंसता हुआ कहने लगा तो संजीदगी से बोली, नहीं, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि तुमने मुझे नहीं ठुकराया, बल्कि मेरी तकदीर ने ही तुम्हें मेरे लिए कबूल नहीं किया था। ठीक है चांदनी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ही मुस्कुराने लगे तो वेटर सालार का इशारा पाकर उनका ऑर्डर तैयार करने लगा। सालार और चांदनी की पहली ही मुलाकात उनके लिए लकी साबित हुई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके थे और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी खुशगवार जिंदगी उनकी मुंतजिर थी। दूसरी तरफ बादशाह ने 5-6 लाख रुपए की भारी रकम गुरु और नैना की मौजूदगी में चांदनी के हाथों पर रखी तो वो हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। तो बादशाह होठों पर मुस्कान सजाता हुआ बोला, बेटी, ये एक अंधे बाप की कमाई है, इससे ज़्यादा की कोशिश अब करूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये रख लो। लेकिन बाबा, चांदनी ने कुछ कहने के लिए अल्फाज का सहारा लिया तो गुरु बोल पड़ा, बादशाह, हमें जलील तो ना करो, हमने तो चांदनी के जहेज की एक एक चीज़ पूरी करके रखी हुई है। नैना भी पैसे पकड़कर बादशाह को पकड़ाता हुआ बोला, बादशाह, मेरा कहा माने तो आप इससे कोई कारोबार कर ले, अल्लाह बरकत डाल देगा। बादशाह ने दोनों हाथों को नफी वाले इशारे में हिलाया और कहने लगा, ना गुरु, नैना, मुझे गुनहगार ना करो। मैं तो अपनी दही की इस एक रात का भी हिस्सा आपका एहसान नहीं दे सकता। जिस रात ये अपनी माँ को ढूंढ रही होगी तो आप लोगों ने उसको अपने सीने से लगाया होगा। आपने तो मेरे गुनाह पर इस तरह पर्दा डाला है कि मैं आप ही अपनी नज़रों से गिर गया हूँ। चांदनी ने आगे बढ़कर बादशाह के हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, बाबा, आप मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उसके इस फिक्रे को बादशाह ने तड़पा दिया था।
इस फिक्रे ने बादशाह को तड़पा दिया था। मुझे गुनहगार करने के साथ साथ तुम बहुत शर्मिंदा भी कर रही हो। बादशाह ने चांदनी के हाथ चूमते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि अगर मैं चांदनी को पढ़ाता लिखाता और उसकी परवरिश और तरबियत करता तो ये रकम तो बहुत ही नाकाफ़ी है। गुरु, ये मुआवजा नहीं, बस वो कुफारा है जो मैं अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु ने इशारा किया तो नैना ने पैसे रख लिए। चांदनी गुरु की तरफ देखती हुई बोली, मुझे कल सालार मिला था। गुरु और नैना खुशगवार अंदाज में उसकी बात की जानिब देखने लगे थे, क्योंकि शमा बीबी के कहने पर उन्होंने चांदनी की रजामंदी को तरजीह दी थी और चांदनी ने हाँ करने से पहले एक बार सालार से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। वो उसको उस तरह अचानक मिल गया था तो ये खुशी की ही बात थी। फिर गुरु ने तजस्सुस से बोला, क्या तुमने उससे मुलाकात की? चांदनी ने बादशाह की तरफ देखा और हया से नजर झुकाती ही बोली, हाँ, काफ़ी तफसील से बातें हुई हैं। इसका मतलब है कि तुम और सालार एक दूसरे को समझ गए हो। नैना भी बोला तो बादशाह इस्तेजाब से उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। चांदनी ने नजरें उठाकर बादशाह और फिर बारी बारी दोनों की तरफ देखा और फिर शर्म से सुर्ख होती हुई बोली, हाँ, मुझे सालार अच्छा लगा है। हुर्रे, चमेली और इलायची भी उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। उन्होंने नारा लगाया तो बादशाह हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। गुरु ने उनका तारुफ भी करवाया तो चमेली और इलायची भी बादशाह को खुश नसीब तस्वुर करने लगे थे। गुरु, अगर तुम कहो तो मैं शमा बाजी को खुशखबरी सुना दूं कि चांदनी ने हाँ कर दी है। शमा का नाम सुनकर बादशाह का दिल जोर ज़रूर धड़का था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये शमा उसी की शमा है। हाँ हाँ नैना, क्यों नहीं मेरी बच्ची, जा, बल्कि अभी के अभी जा। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। गुरु ने ताली बजाई तो बादशाह भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। नैना, अगर हो सके तो बाजी को अपने साथ ही ले आना, हम उनको चांदनी की पूरी कहानी भी सुना देंगे और बादशाह से भी मिलवा देंगे। आखिर अब उन्होंने बादशाह की समधन भी तो बनना है। गुरु खासा पुरजोश हो रहा था। बादशाह मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे शर्मसार तो ना करे, असल में उनके समधी तो आप ही होंगे ना। सभी मुस्कुरा पड़े तो गुरु ने दुपट्टे के पल्लू से 500 का नोट निकाल कर इलायची को पकड़ाया। ये लो, अभी के अभी मिठाई लेकर आओ, दोनों ही चले जाओ। चमेली खुश होकर बोला, अकेले गुलाब जामुन ही ले आते हैं गुरु। वे वे जावे, तेरे मुंह चू गुलाब भी नकले ते लगदा है, तू जामुन ही कहिया होनाई, दफा कमीनिया। गुरु ने ताली बजाई तो बादशाह भी मुस्कुराने लगा था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा था कि उसने चांदनी को इन हिजड़ों के घर फेंका था। अगर वो किसी कचरे पर फेंक देता तो कोई भी आवारा जानवर उस बच्ची को नुकसान पहुंचा सकता था। वो ये सोचकर ही काँप गया था। उसने तशक्कुर-आमेज़ अंदाज में आसमान की जानिब हाथ उठा दिए और बोला, मेरे मालिक, तू बहुत बेनियाज और कारसाज है। मेरे अल्लाह, तेरा लातादाद शुक्र है कि तूने मेरी गलती और गुनाह को अपनी रहमत से इस तरह छुपाया कि मैं तेरा ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकता और ना ही जुर्रत कर सकता हूँ। चांदनी ने अपना सर बादशाह की गोद में रखा तो उसके आंसू निकलकर चांदनी के चेहरे पर गिर गए। चांदनी ने अपनी उंगलियों के पोरों से बादशाह के आंसू पोंछे तो जब्त के बंधन ही टूट गए थे। बादशाह ने उसके हाथ पकड़कर चूम लिए थे। गुरु भी नम आंखों से उनकी तरफ देख रहा था। वो चमेली और इलायची के जाने के बाद से उठा और रकम को अंदर महफूज जगह पर रखने के लिए चला गया। वो भी चाहता था कि बाप और बेटी मिलने के बाद पहली मुलाकात में एक दूसरे से जो भी बातें और गिले शिकवे करना चाहते हैं कर ले। मैं भूल गया था कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुशकिस्मत है वो माँ जिसकी पहली औलाद बेटी होगी, और जो बाप दो बेटियों की परवरिश और तरबियत इस्लामी तरीके से करेगा वो क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरा हमसाया होगा। बादशाह को शरीयत भी याद थी और अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी याद थे। आप फ़िक्र नहीं करे बाबा जान, अब आप मुझे मिल गए हैं ना, अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर कर देगा। चांदनी ने उसको मज़ीद दिलासा दिया तो वह आंसू पोंछता हुआ बोला, हाँ मेरी बच्ची, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने जितनी भी तकलीफ़ सही है और सब अल्लाह की नाफरमानी और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अदौली पर ही सही है। मैं इसी काबिल था। चांदनी ने उसके लहजे और अल्फाज पर तड़प कर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, बाबा, क्या आपने माँ को इन गलियों में ही देखा था? वो उसकी बात सुनकर कर्ब से हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, तब मैं देख कहाँ सकता था मेरी बेटी। ये सुनकर चांदनी को भी अपने सवाल में अल्फाज की गलत अदायगी का एहसास हुआ। वो शर्मिंदगी महसूस करती ही बोली, मेरा मतलब था कि उन्होंने आपसे जब आखिरी बार बात की थी तो आप कहाँ थे?
بادشاہ چاندنی کے جذبات سمجھ سکتا تھا، اس کو باپ مل گیا تھا تو وہ چاہتی تھی کہ ماں بھی مل جائے۔ وہ دکھ سے بولا، ہاں میری بیٹی، میں اس گھر سے خیرات لے کر نکلا تھا تو ابھی چند قدم ہی گیا ہوں گا کہ مجھے شمع کی آواز اپنے انتہائی قریب سے آئی۔ بادشاہ اس کے کہے ہوئے الفاظ سوچنے لگا تھا، وہ پھر بولا، ہاں ہاں یاد آ گیا، اس نے مجھے خیرات میں کچھ پیسے بھی دیے اور بولی تھی کہ بادشاہ ابھی تمہاری سزا باقی ہے، تم نے اسی طرح مرنا ہے، در در کی بھیک مانگتے ہوئے، اسی طرح اندھے ہی رہو گے۔ بادشاہ کی آواز پھٹ گئی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتا ہوا بولا، وہ غصے میں تھی اور مجھے دکھ نہیں ہوا کیونکہ اس کا غصہ اور اس کے الفاظ کی تلخی اس کا حق تھا۔ چاندنی نے بادشاہ کے لہجے میں کرب کو محسوس کر لیا تھا۔ بابا اگر ہم ماں کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں سوچتی ہوں وہ مجھے پہچانے گی بھی یا نہیں؟ بابا وہ مجھے پہچان لے گی نا؟ چاندنی کا دردناک لہجہ بادشاہ کو لرزا گیا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، وہ تمہاری ماں ہے، جب بھی تمہیں ملے گی تم دیکھنا کہ اس کے دل کی تڑپ اور خون کی کشش اس کے چہرے سے آیا ہوگی۔ وہ تمہیں اس طرح بھیجے گی کہ یوں لگے گا کہ وہ تمہیں اپنے وجود میں ہی دوبارہ سنبھالے گی۔ کیا ماں ایسی ہوتی ہے بابا؟ چاندنی کا معصوم سوال اس کے ذہن اور دل و دماغ کی عکاسی کرنے لگا تھا۔ اس نے تو ماں کو دیکھا بھی تھا تو صرف 6 دن کی تھی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ ماں کیسی ہوتی ہے۔ ماں کی گود، اس کی ممتا، اس کا پیار، اس کی لوریاں، اس کی محبت، اس کا وہ خلوص جو دوسرے رشتوں کی بنسبت سچا اور بالکل خالص ہی ہوتا ہے۔ ماں کے احساسات اور جذبات میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ وہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکتی تھی اور نہ ہی جان سکتی تھی، کیونکہ اس نے ماں کی گود میں آنکھ ضرور کھولی تھی، لیکن اس کی ممتا کا لمس محسوس کر کے اس کو دل و دماغ میں نہ رچا بسا سکی تھی۔ اس کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ماں ایسا رشتہ ہے کہ فرشتے بھی ترستے ہیں کہ اللہ نے اگر ان کو بنایا ہے تو ان کو اتنا عظیم اور پرخلوص رشتہ بھی نوازا ہوتا۔ ماں تو بہت عظیم ہستی ہوتی ہے میری بیٹی، بادشاہ نے کہنا شروع کیا تو وہ ہم تم گوش ہو کر سننے لگی۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا تم اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتی ہو کہ میں جب بھی اداس اور پریشان ہوتا ہوں تو اس قبرستان میں چلا جاتا ہوں جس میں میری ماں دفن ہے۔ بادشاہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ اماں حلیمہ سعدیہ نے ہمارے پیارے آقا کو پالا تھا، اور جب اماں سعدیہ آیا کرتی تھی تو آقا مدینہ تاجدار کائنات اپنی کالی کملی ان کے قدموں تلے بچھا دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھ کو محمد کہہ کر پکارے تو میں اپنی نماز توڑ کر ان کو فوراً کہوں، جی ماں جی۔ چاندنی نے بھیگی آنکھوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، میں اپنی ماں کو یاد کر کے اکثر کیوں رویا کرتا ہوں؟ صرف اس لیے کہ وہ بھی ہمیں بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ میری تربیت اور پرورش میں بہت سی خامیاں رہ گئی تھی۔ بادشاہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا برملا اعتراف کر کے چاندنی کو ماں کی عظمت سمجھا رہا تھا کہ نینا مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اور آتے ہی بولا، بابا مبارک ہو آپ کو، شمع باجی ابھی مٹھائی لے کر ہم سب کا منہ میٹھا کروانے کے لیے آ رہی ہے، ساتھ میں ان کا بیٹا موسیٰ بھی آئے گا۔ اچھا تمہیں بھی مبارک ہو نینا، اور میری دہی چاندنی کو تو بہت ہی مبارک ہو۔ بادشاہ نے چاندنی کے ماتھے پر بوسہ دیا تو شمع بی بی کی جانب سے مٹھائی لانے کا سن کر شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی۔ گرو بھی آیا تو نینا نے اس کو خوشخبری سنا دی، وہ بھی تالیاں بجانے لگا تھا۔ میں منہ ہاتھ دھو لوں ذرا؟ بادشاہ وہاں سے اٹھ کر واش بیسن کی طرف بڑھا تو چمیلی اور الائچی مٹھائی کا ڈبہ لے کر اندر داخل ہو گئے۔ کل منہی جلدی آ جا، شمع باجی بھی مٹھائی لے کر آنے والی ہے۔ گرو نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ پکڑ کر کچن میں رکھا اور جھاڑو لے کر الائچی کو پکڑا دیا، جلدی جلدی پھیر دے، میری بچی کی ساس آنے والی ہے۔ چمیلی اور الائچی نے جلدی جلدی صفائی کرنا شروع کر دی تھی۔ بادشاہ کمرے میں چلا گیا تھا اور نینا اور گرو اکھیاں بچھائے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ دستک سن کر گرو خوش ہوتا ہوا اٹھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو شمع بی بی اور موسیٰ کو مسکراتے ہوئے پایا تھا، لیکن گرو کی جہاندیدہ نظروں نے بھاپ لیا تھا کہ شمع بی بی گزشتہ 2-1 روز میں کافی پریشان رہی ہے یا پھر بیمار رہ چکی ہے، لیکن یہ موقع نہ تھا کہ وہ دروازے پر کھڑے کھڑے ہی ان سے پوچھنا شروع کر دیتا، بسم اللہ جی آیا نو، صد بسم اللہ۔ گرو کو دلی خوشی ہو رہی تھی اور موسیٰ اس کے انداز دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور شمع بی بی مسکراتی ہوئی اندر آئی تو موسیٰ کو بھی ان کی تقلید کرنا پڑی۔ وہ پہلی بار اس گھر میں آیا تھا، اب تو سالار کی ان سے رشتہ داری ہو جانا تھی اور پھر سالار نہیں آیا کرنا تھا۔
बहुत मुबारक हो शमा बाजी। नैना ने आगे बढ़कर शमा को मुबारकबाद दी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मिठाई का डब्बा गुरु को पकड़ाते हुए कहा, आपको भी बहुत मुबारक हो गुरु। नैना गुरु उनको लेकर तख्त पोश तक ला आया था, लेकिन चंबेली और इलायची ने अपनी मैनेजमेंट का रौब जमाने के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां रख दी थी। मूसा उनको देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वो कुर्सियों पर बैठ गए थे। बाजी, अच्छा हुआ कि सालार और चांदनी ने एक दूसरे को अच्छी तरह जान लिया है। नैना ने मुस्कुराकर शमा से कहा तो वो भी मुस्कुराती हुई बोली, हाँ नैना, मैं भी यही चाहती थी कि चांदनी और सालार एक दूसरे को अच्छी तरह समझ ले। चले, अब तो ये मसला भी हल हो गया। गुरु बोला, बाजी शमा, आपको नैना ने बता दिया होगा कि चांदनी हमारी सगी बेटी नहीं है। हमने इसको पाला है, लेकिन इस तरह के जैसे इसने हमारी कोख से जन्म लिया हो। शमा बीबी ये सुनकर दुखी हो गई थी। उनको अपनी बेटी याद आ गई थी। वो कर्बनाक मुस्कान होठों पर सजाती हुई बोली, मुझे नैना ने बताया है कि चांदनी का बाप वापस मिल गया है। शमा बीबी की ख्वाहिश थी कि वो चांदनी के बाप को देख ले, क्योंकि उनको जो कहानी सुनाई गई थी उसमें तो यही लगता था कि चांदनी को हिजड़ों ने पाला है, तो उसकी बेटी की दास्तान भी कुछ उससे अलग ना होगी। जी जी बाजी, ये तो अल्लाह ने बहुत ही अच्छा किया है कि अब बेटी बाप की दुआओं के साए में ही रुखसत होगी। गुरु ने कहा और फिर नैना से बोला, जाओ चांदनी को ले आओ। अब शमा बाजी और मूसा से क्या शर्माना कैसा। मूसा और शमा मुस्कुराने लगे तो चांदनी की चंसी चाय की ट्रे के साथ बरामद हो चुकी थी। नैना ने उसके सुर्ख और याकूती होठों को कांपते देख कर उसके कान में कहा, क्यों नर्वस हो रही हो चांदनी, खुश होकर जाओ मुस्कुराते हुए। चांदनी ने शमा और मूसा को सलाम किया तो मूसा ने पहली बार गौर से चांदनी को देखा था। वो वाकई सालार के लिए ही बनी होगी, जो अबीद रज़ा की किस्मत में ना थी। सालार अहमद ने मूसा को सारी बात बता दी थी कि चांदनी को उसने किस तरह राज़ी किया है। अब सालार खुद ही आकर अपनी हकीकत से पर्दा उठाने का कहकर मूसा को मना करके गया था। इसमें क्या मसलिहत थी ये सालार ही जानता था। शमा ने उठकर चांदनी को प्यार दिया और उसकी पेशानी पर मोहब्बत की महर सबत करती हुई बोली, अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे मेरी बेटी। मेरी बेटी के कहते हुए उनके अल्फाज लड़खड़ाए ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया था। नैना ने चमेली और इलायची को इशारा किया तो प्लेटों में मिठाई डाल कर ले आए, और फिर जब मिठाई चांदनी के मुंह में डाली जाने लगी तो बोली, शमा आंटी, बाबा को भी आने दे अभी। शमा बीबी का हाथ रुक गया और वो मुस्कुराने लगी थी। मूसा को भी चूँकि सारी बात का इल्म सालार की बाबत हो चुका था, तो वो जानता था कि चांदनी का बाप वही बादशाह फ़कीर है जो गलियों में भीख मांगता फिरता था। लेकिन शमा बीबी के लिए वो एक बहुत बड़ा झटका था जब गुरु ने बादशाह को अंदर से आता देख कर मुस्कुरा कर कहा, लो जी, चांदनी के अब्बा भी आ गए। आओ आओ बादशाह बाबा। बादशाह तो सर झुकाए हुए आ रहा था, जबकि शमा बीबी उसको आता देखकर पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह ने पहुंचकर सलाम किया तो वो भी 25 सालों बाद शमा को देखकर एकदम हौक बन गया था। उसका मुंह भी खुला रह गया था। चांदनी और दूसरे लोग उन दोनों की कैफियत से हैरानी और परेशानी में मुब्तला हो गए थे। शमा बीबी ने उठकर जाना चाहा तो बादशाह तड़प कर बोला, शमा, ये बहुत बड़ा बम धमाका था जो शमा बीबी के चांदनी जैसे बालों को राख का ढेर बना गया था। वो वापस मुड़कर बादशाह को देखने लगी थी कि उसकी नज़र ठीक हो गई है। बादशाह आगे बढ़कर शमा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और नज़र झुकाकर बोला, शमा, मैं अब ठीक से देख सकता हूँ, लेकिन तुमसे नज़र नहीं मिला सकता, क्योंकि खुदा से पहले इस कायनात पर अगर मैं किसी इंसान का मुजरिम बना हूँ तो वो तुम हो शमा। बादशाह के अल्फाज ने चांदनी के दिलो दिमाग में धमाके करना शुरू कर दिए थे। गुरु, नैना, चमेली और इलायची हैरान और परेशान थे, जबकि मूसा का भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन वो अपने आप पर काबू पाए खामोश खड़ा था। मेरी बेटी कहाँ है बादशाह? शमा बीबी ने लरसते होठों से ये फिक्रा अदा किया तो बादशाह ने उनके कदमों पर अपना सर गिरा दिया और दो जानों होकर उनके कदम पकड़ लिए। शमा, ये चांदनी ही तुम्हारी बेटी है। शमा बीबी ने अंगारा बनी आंखों से चांदनी की तरफ देखा, जो बेतरतीब धड़कनों और पथराई हुई आंखों से माँ की तरफ ही देख रही थी। शमा बीबी के आंसुओं की कतारें उनके गालों पर लकीरें बनाने लगी थी। उनकी किस्मत में शायद आंसू ही आंसू लिखे गए थे। पहले शर्जील ने उनको जलील किया और घर छोड़कर चला गया था, और उसके फ़ौरन बाद ही बादशाह का इस तरह मिल जाना और 6 दिन की देखी हुई बच्ची को आज 25 साल बाद इस तरह मिलना कि वो कई बार उससे मिली थी,
लेकिन पहचान न पाई थी। उनको खुद पर ही अफसोस हो रहा था और इसी अफसोस पर आंसू निकल रहे थे। बादशाह उनके कदमों में गिरा हुआ था। तुम्हारे कदम तो मैंने भी पकड़े थे बादशाह, वो दोबारा बोली और अपने कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन बादशाह भी घुटनों के बल घसीटता हुआ आगे की जानिब बढ़ गया। तुम्हें खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, शमा मेरी गलती को माफ़ कर दो। वो अपने हलक को तर करती हुई आंसुओं को पीती हुई बोली, क्या उसी खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे रहे हो जो कभी मैंने भी दिया था, या फिर तुम जैसे दौलतमंद ने कोई और खुदा और रसूल बना लिया है? शमा बीबी की बातें उन सब के लिए दुख का बाज़ ज़रूर थी, लेकिन बादशाह का जुर्म माफ़ करने का इख्तियार इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ शमा को ही था। इसीलिए सभी अपनी अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को बहने से ना रोक सकते थे और ना ही इन दो बड़ों के झगड़े में कोई तस्फिया करवा सकते थे। मैं मानता हूँ शमा कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, बादशाह गिड़गिड़ाने लगा था, लेकिन मैंने अपने गुनाह और जुर्म की बहुत सज़ा काटी है। मैं जिस बेटी को जहमत समझकर तुम्हारी गोद से छीन कर ले गया था, उसी बेटी की आहें और सिसकियाँ मुझसे मेरी नींदें और सुकून ले गई थी। तुम्हारी बद्दुआओं ने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। मैं बादशाह से फ़कीर बनकर गली गली बाजार बाजार सदा लगाने लगा। बादशाह की गरियाजारी बढ़ने लगी तो मूसा आगे बढ़ा और उसने झुककर बादशाह को ऊपर उठाया तो बादशाह शमा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। शमा, शमा, लोग मुझे कुत्ता समझकर धुतकारते रहे। मैं लोगों का झूठा खाना खाता रहा, उनकी उतरन पहनता रहा। मैंने सिर्फ तुम्हें और चांदनी को ढूंढने के लिए 25 साल तक इन गलियों की खाक छानी है। अब अगर तकदीर ने तुम्हें मुझसे मिला ही दिया है तो तुम्हें तुम्हारी इस बेटी की कसम, मुझे माफ़ कर दो। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, तुम लोगों की खुशियों भरी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा, इतना दूर कि कभी अपनी ये मनहूस शक्ल भी ना दिखाऊँगा। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। बादशाह की हिचकी बन गई थी। चांदनी आगे बढ़ी और शमा के सामने आकर खड़ी हो गई तो दोनों माँ बेटी की आपस में निगाहें मिली तो 25 सालों का ठंडा खून ही एकदम जोश में आ गया। शमा बीबी तड़प गई और ऐसी ही कैफियत चांदनी की भी थी। शमा ने अपनी बाजू वाह कर दिए तो चांदनी तड़पती और सिसकती हुई उनके सीने से जा लगी। कायनात का पूरा निज़ाम हरकत में था, लेकिन यूँ लग रहा था कि इस घर की हर चीज़ अपनी जगह पर साकित हो गई है, हत्ता कि मौजूदा नफूस की सांस लेने की आवाज़ें ही सुनाई देने लगी। दिलों की धड़कनें इस कदर शोर कर रही थी कि माँ बेटी का रोना और सिसकियाँ भी सुनाई ना दे रही थी। अब बाबा को माफ़ कर दें अम्मी जी। पहली बार किसी को अम्मी जी कहने पर चांदनी के मुंह में मिठास घुल गई थी। शमा बीबी जबकि शमा बीबी ने भी ज़िंदगी में पहली बार अपनी सगी बेटी के मुंह से अपनी अम्मी का लफ्ज़ सुना तो उसकी समाअतें भी अशश करने लगी थी। क्या कहा मेरी बेटी, ज़रा एक बार फिर से कहना। वो चांदनी की तरफ देखती हुई बोली तो वो रोती हुई चांदनी फिर बोली, अम्मी जी, अम्मी जी। चांदनी की अगली बात उसके मुंह से निकलने से पहले ही शमा ने उसको अपने सीने से लगा लिया और प्यार से भींचती हुई बोली, 25 साल बाद तुमने अपनी माँ से मांगा भी तो क्या मांगा। वो चांदनी को छोड़कर बादशाह की जानिब बढ़ी और उसकी तरफ तरस खाने वाली नज़रों से देखती हुई बोली, बादशाह, जब चांदनी ने मेरी गोद में आँख खोली थी तो मैंने अपने रब से वादा किया था कि इस बच्ची की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, चाहे ये मेरी जान भी मांग ले तो मैं उस पर हंस कर निछावर कर दूंगी। आंसुओं की झड़ी एक बार फिर लग गई थी। सुनो बादशाह, मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें इस बच्ची के सदके दिल से माफ़ किया। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया बादशाह। बादशाह ने आगे बढ़कर चांदनी को सीने से लगा लिया और आंसुओं के नजराने उसके सर और चेहरे पर निछावर करने लगा। गुरु और नैना के साथ साथ मूसा, चंबेली और इलायची भी इस दर्दनाक कहानी का ड्रॉप सीन अच्छे अंदाज में होने पर खुश दिखाई दे रहे थे। चंद मिनटों बाद ही इस घर में दोबारा खुशियाँ लौट आई थी। मूसा ने फ़ोन करके सालार को भी बुला लिया था और वो भी हैरत और खुशगवारियत में मुब्तला होकर शमा बीबी के कदमों में ही बैठ गया था। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि अब मेरी माँ कौन सी है और सास कौन सी है। सालार की बात पर हल्का सा कहा लगा था तो गुरु बोला, हम तुम्हारे ससुराल है और शमा बाजी तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा साला हूँ। मूसा ने मुस्कुराकर कहा तो सालार अहमद ने उठकर उसको गले लगा लिया और जब वो उससे अलग हुआ तो उसकी आंखें झिलमिल कर रही थी। काश कि इस खुशी के मौके पर मेरी माँ भी ज़िंदा होती और आज आप सब की तरह ही खुश होती। माहौल एकदम संजीदा होने लगा था। शमा बीबी ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और बोली, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ सालार? सालार ने उनके हाथ चूम लिए और आंसुओं से
उन हाथों को धोता हुआ बोला, माँ जी, खुदा की पाक ज़ात के बाद आप ही ने तो मुझे अपना समझा है और बिल्कुल इसी तरह ख्याल रखा है जिस तरह आपने मूसा का रखा है। बेशक आप अजीम माँ है। सालार ने माहौल को संजीदा और आबदीदा कर दिया था, लेकिन बादशाह ने उठकर उसको गले से लगाया और बोला, सालार अहमद, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारा खून भी वही खुशबू रखता है जो मेरे खून से आ रही है। सालार अहमद ने उसकी तरफ गौर से देखा और एक लंबी सांस लेता हुआ बोला, अंकल, मैं नहीं जानता कि मेरा आज से पहले आपसे कोई रिश्ता है भी या नहीं था, लेकिन आज जो आपसे रिश्ता जुड़ा है तो दिल ने इतनी तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया है कि इसकी बेतरतीब धड़कनों को एतदाल पर लाने के लिए मुझे अपना आप साफ साफ सबको बताना होगा। उसने सबके चेहरों की तरफ बार बार गौर से देखा और बोला, मैं टेक्सटाइल्स मिल्स ऑनर वहाब मीर का बड़ा बेटा हूँ। ये सुनकर बादशाह और शमा ने एक दूसरे की तरफ देखा तो बादशाह के चेहरे का रंग सुर्ख होने लगा। सालार अपनी दास्तान सुनाने लगा था। शमा बीबी की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ ना हो रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि बादशाह के छोटे भाई का नाम वहाब मीर ही था, और सालार की दास्तान ने तो सब कुछ वाज़ेह करके रख दिया था कि वो बादशाह का भतीजा और वहाब मीर का बेटा था। सालार की आंखें छम छम बरस रही थी। चांदनी 25 साल माँ बाप की गोद और प्यार को तरसती और तड़पी थी, तो वो भी माँ की गोद में सर रख कर ना सो सका था। उसको बाप ने कभी भी सीने से ना लगाया था। इन दोनों की कहानी एक जैसी ही थी। तभी तो चांदनी की आंखें भी सालार के दुख में शरीक होने के लिए अपना किरदार अदा कर रही थी, और चांदनी के मासूम चेहरे पर अटखेलिया करने वाले आंसू उसके हुस्न को मजीद निखार रहे थे। मैंने अपना घर वापस लेने के लिए वहाब मीर और उनकी बीवी को नोटिस भिजवा दिए है। वो घर मेरा है और मैं उस घर में आप सब के साथ रहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के साथ। सालार अहमद ने अपनी कहानी ख़त्म की तो बादशाह ने उसको गले लगाया और बोला, सालार अहमद, तुम नहीं जानते कि वहाब मीर मेरा छोटा भाई है और तुम मेरे सगे भतीजे हो। सालार अहमद और बाकी सब का मुंह खुला ही रह गया था। शमा बीबी इस हकीकत से आशना थी, लेकिन उनको मालूम ना था कि सालार अहमद उनके देवर का बेटा है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको अपने बच्चों की तरह ही रखा हुआ था। ताया अब्बू, सालार अहमद ने बादशाह के सीने से लगकर उनकी आंखों में देखा तो सुर्ख सुर्ख आंखों का खून और सीनों में धड़कने वाला दिल पुरजोश हो गया था। हाँ मेरे बेटे, तुम सालार अहमद मेरे भतीजे हो। सालार अहमद ने बादशाह को सीने से लगाकर भींच लिया था, गोया कि वो वहाब मीर की कसर निकालना चाहता था। उसको बादशाह के वजूद से वहाब मीर की खुशबू आ रही थी, लेकिन वो तड़पता और तड़पता ही रहा था कि कभी वहाब मीर भी उसको अपने सीने से लगाते, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी ना हो सकी थी, क्योंकि हिना बेगम का जाल इतना मजबूत और गहरा था कि वहाब मीर चाह कर भी उससे ना निकल सकते थे। हम सब कितने खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया है। गुरु ने कहा तो सभी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, और फिर मिठाइयों के साथ साथ चाय का दौर चला, और सालार अहमद ने चांदनी को सोने की अंगूठी पहनाकर अपना लिया था। उनकी मंगनी यकीनन तारीख की अनोखी मंगनी थी। दूसरी तरफ वहाब मीर और हिना बेगम इस वक्त घर के लॉन में कुर्सी पर बैठे हुए थे, सितारा बुटीक पर, जबकि अबीद रज़ा आवारगी में मगन होकर कहीं गुम था। इस वक्त घर में वो दोनों ही अकेले थे, लेकिन सालार इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। उसको अब अपने काम की इब्तिदा हिना बेगम से करना थी। उसने सितारा का नंबर मिलाया तो दूसरी जानिब से कॉल रिसीव करने पर मुस्कुराता हुआ बोला, हेलो सिस्टर, कैसी हो? खैरियत है सालार भाई? सितारा की आवाज़ में हैरत और खुशगवारी का अंसर नुमाया था। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं आप, सालार मुस्कुराता हुआ बोला। सितारा, मैंने एक बार मजाक में तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर सगा भाई होता तो तुम क्या करती? मैं समझी नहीं सालार भाई। सितारा वाकई ना समझी थी। सितारा, आज शाम को तुम ज़रा जल्दी आ जाना, मेरा निकाह है और तुम इस घर के किसी भी फ़र्द को नहीं बताओगी कि तुम कहाँ जा रही हो। सालार ने हंसते हुए कहा तो दूसरी तरफ से सितारा भी मुस्कुराने लगी और बोली, वैसे सालार भाई, एक बात कहूँ? 100 बातें कहो, मेरे पास वक्त ही वक्त है। वो आज बहुत खुश था। मुझे आपकी समझ नहीं आई, आप क्या है? कभी तो ऐसा लगता है कि आप हमारे बहुत ही करीबी और ख़ास अजीज़ है, और कभी कभी लगता है कि आप बहुत ही ख़ास अजनबी है। ये राज क्या है आखिर? सितारा की बात दुरुस्त थी। तुम इस टाइम कहाँ हो? मैं बुटीक में हूँ। क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? वाई नॉट सालार भाई, सितारा ने कहा तो सालार मुस्कुराता हुआ बोला, तो फिर ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हम तुम्हारे ऑफिस में ही कॉफ़ी पियेंगे और बहुत ही ज़रूरी बातें मैं तुमसे करना चाहता हूँ।
वेलकम भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। सितारा ने ये कहा तो सालार ने कॉल मुनक़ता कर दी और फिर मूसा का नंबर मिलाकर उसको भी बता दिया कि वो अभी बुटीक में आ रहा है। मूसा समझ गया कि आज वो हिना बेगम के किरदार का पर्दाफाश करने वाला है। आधे घंटे बाद वो फ्रेश होकर घर से निकलने लगा तो हिना बेगम से उसकी मुठभेड़ हो गई। वहाँ मीर शायद चले गए थे। हेलो आंटी, उसने हिना बेगम को तंज से पुकारा तो वो हिकारत से उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ गई तो सालार ने उनको पुकारा। गैरों की बाहों में झूलने का शौक हो तो कम से कम अपना स्टेटस तो बरकरार रखा करे। हिना बेगम पर बिजली गिर पड़ी थी। वो तड़प कर मुड़ी और खौफजदा नज़रों से सालार की तरफ देखने लगी, जैसे कि सालार ने उनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली है। वो अपने मान मर्तबे को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ी और सालार की आंखों में आंखें डालती हुई पूछने लगी, तुम्हारी ज़बान ने जो कीचड़ उछाला है, क्या वो मेरे किरदार पर अपने छींटे छोड़ते हुए तुम्हारी औकात और ज़हीनत की अक्कासी भी नहीं करता? सालार तंज़िया अंदाज में हंसा और उनकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, हिना बेगम। उन्होंने अपना मोबाइल दूसरे हाथ में पकड़ा। माइंड योर लैंग्वेज, वो गरजती हुई बोली। अपनी हद में रहो और ये भी याद रखो कि मैं वहाब मीर की बीवी हूँ, जो कि तुम्हारे बाप के दोस्त है। उनकी शहादत वाली उंगली खड़ी थी और इस बात की वार्निंग दे रही थी कि सालार अपनी ज़बान बंद रखे, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ बोला, ये बात तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता कि आप वहाब मीर की बीवी है। इन अल्फाज की गहराई से हिना बेगम नाबल थी और आपको भी ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आप जिस घर में उनकी बीवी बनकर आई है वो घर किसी और का है, वहाब मीर या तुम्हारा नहीं। सालार ने उनके हाथ से उनका मोबाइल लिया और फिर अपना मोबाइल भी निकाल कर हैरान और परेशान खड़ी हिना बेगम के लिए दिलचस्पी बढ़ाता हुआ दोनों मोबाइल के मुख्तलिफ बटन दबाने लगा और फिर मुस्कुराकर उनकी तरफ देखने लगा। आज शाम को इस घर का असली वारिस आ रहा है हिना बेगम। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपने शौहर वहाब मीर या अपने आशिक हीरा बदमाश से कहकर नया घर तलाश कर लो। उसने मोबाइल देखकर हिना बेगम का हाथ खोलकर उनका सेट उनके हाथ पर रखा और बोला, अभी के अभी इस फिल्म को ज़रूर देख लेना। वो बावकार अंदाज में चलता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। हिना बेगम का सर घूमने लगा था क्योंकि वो हीरा बदमाश का नाम लेकर उसको खबरदार कर गया था और फिर ना मालूम इस फिल्म में क्या था जो वो इतनी गारंटी के साथ कह कर गया था। ये कौन था और उसके घर में क्या करने आया था? ये इस घर के वारिस की बात कर रहा था। वो भी जानती थी कि इस घर का असली वारिस सालार अहमद है, जो कि वहाब मीर का पहला बेटा है। लेकिन ये कौन था और उसके इस घर के अहम तरीन राज कैसे पता चले? क्या यही सालार अहमद है? उनकी सुई उसी तान पर आकर अटक गई थी। इसका मतलब है कि वहाब मीर ने उनको धोखा दिया है और दोस्त का बेटा बनाकर सालार अहमद को इस घर में लाया है। वो हीरा बदमाश को भी जानता है और उसकी बातें बता रही थी कि वो हीरा और हिना बेगम के ताल्लुकात को भी जानता है। अगर वहाब मीर और अबीद रज़ाक को मालूम हो जाए कि वो हीरा बदमाश की बाहों में झूलती रही है और उसकी कज़िन है और साबिका मंगेतर भी है, तो फिर यकीनन वहाब मीर उसको घर से निकाल देंगे या फिर अबीद रज़ा गैरत खाकर उनको गोली मार देगा। उनकी जवान बेटी सितारा उनके बारे में क्या सोचेगी? हिना बेगम को मुख्तलिफ मनफी सोचों ने घेर लिया था। वो अपने मोबाइल की घंटी बजने पर चौंक गई तो उन्होंने नंबर देखा, जो कि अजनबी था। उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी जानिब से सालार अहमद की जहरीली आवाज़ ने उनके कानों को झुलसा दिया। अम्मी जान, फिल्म देख ली? मैं अब जा रहा हूँ। हिना बेगम ने राब्ता मुनक़ता होने पर बरामदे के कोने पर देखा तो सालार अहमद उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अभी तक वहीं खड़ा उनकी हरकत और सकनात देख रहा था और उसकी हिना बेगम को तंसिया अंदाज में अम्मी जान कहना भी साबित करता था कि यही सालार अहमद वो है जो वहाब मीर का बेटा है। हिना बेगम का दिल चाहता था कि वो अपनी अज़ियतनाक शिकस्त पर अभी के अभी खुद को गोली मार ले, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखते हुए नफरत से सालार अहमद की तरफ देखा, जो वसी लॉन अबूर करता हुआ अब गेट क्रॉस कर चुका था। हिना बेगम ने मोबाइल पर वो फिल्म देखना शुरू की जो अभी अभी सालार अहमद ने उनके मोबाइल पर सेंड की थी। लेकिन ये क्या, पहला ही सीन स्क्रीन पर चला था तो हिना बेगम का कलेजा मुंह को आ गया। वो यूँ महसूस हुआ कि दिल की धड़कनें एकदम साकित हो गई हो और इस इमारत का पूरा ही मलबा उनके सर पर आन गिरा हो। ज़मीन घूमने लगी और आसमान गिरने को बेताब दिखाई दे रहा था। बीनाई कम और समात इंतहाई मध्यम होने लगी थी। हाथ और पाँव लरजने लगे थे और पेशानी पर आने वाले पसीने के कतरे इस बात की अलामत थे कि सालार अहमद इस वक्त इस कमरे में मौजूद था। तब हिना बेगम हीरा के साथ अय्याशी कर रही थी। हिना बेगम ने
हिना बेगम नीम बेहोशी के आलम में सोफे पर ही ढेर हो गई थी। सालार अहमद मुस्कुराता हुआ बुटीक में दाखिल हुआ था। वो अपना काम बखूबी अंजाम दे आया था। उसको मालूम था कि जब हिना बेगम इस फिल्म को देखेंगी तो सब कुछ उनको पता चल जाएगा कि सालार अहमद ने उनकी शहरत पर अपना अंगूठा रख दिया है। और अब वो उस अंगूठे को आहिस्ता आहिस्ता तब तक दबाता रहेगा जब तक हिना बेगम की आंखें उबलकर बाहर नहीं आ जाती। उसको ये भी पता चल गया था कि चांदनी अबीद रज़ा से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ उसी की थी, क्योंकि ये अब सिर्फ चांदनी और सालार अहमद का फैसला ना था, बल्कि ख़ानदान के बड़े भी इस फैसले में शामिल और खुश थे। और आज शाम को चांदनी उसकी दुल्हन बनकर उसके घर में आने वाली थी। सालार अहमद इस तमाम मामले में सितारा को मासूम और बेगुनाह समझता था, तभी तो वो सारी बात उसको बताना चाहता था। और शाम को चाहता था कि सितारा खुद अपने हाथों से दुल्हन बनाकर चांदनी को इस घर में लेकर जाए, ताकि चांदनी की दोस्ती भी उससे हो सके और वो सितारा की नज़रों में भी सरखुरू हो सके। अस्सलामुअलैकुम। सालार अहमद ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और सितारा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो भी मुस्कुराने लगा। आइए सालार भाई। सितारा ने उसको कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो वो थैंक यू कहता हुआ बैठ गया और बोला, ज़रा जल्दी से मूसा को भी बुलवाना प्लीज़। सितारा हैरान तो थी ही, लेकिन सालार अहमद का अंदाज बता रहा था कि बात मूसा के बगैर नहीं होगी। उसने रिसीवर उठाकर मूसा को अपने ऑफिस में आने का कहा और फिर एक और नंबर मिलाकर 3 कप कॉफ़ी लाने का कहा। मूसा ऑफिस में दाखिल हुआ तो सितारा के इशारा करने पर वो सालार के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा कि वो खासा संजीदा लग रहा था। जी, मुझे बुलाया था आपने? मूसा ने कहा तो सितारा ने सालार अहमद की तरफ इशारा करके कहा, बुटीक का तो कोई काम नहीं है, सालार भाई ने आपको बुलाया है। अब तुम मेरे साले हो और मैं तुम्हें नहीं बुला सकता क्या? सालार खुशगवार मूड में बोला तो सितारा को हैरत का झटका लगा था। वो मुंह खोले इन दोनों को देखे जा रही थी, जो दोनों ही अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों पर मारकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। यार, इस बेचारी को भी बता दो, देखो कैसी शक्ल हो रही है इसकी। मूसा का पहली बार इतना फ्री अंदाज देखकर सितारा और भी हैरान थी। उसने सालार अहमद की तरफ देखा तो वह हंसना बंद करके बोला, सीरियस सितारा, तुम मेरी बहन हो लेकिन मेरे बाप की बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ का बेटा नहीं हूँ। सितारा कुछ भी ना समझी थी। सालार भाई प्लीज़, अगर आप दोनों मुझसे कोई भोंडा मजाक करना चाहते हैं तो मैं हरगिज़ हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देती। वो संजीदा हो गई थी। मूसा और सालार ने एक दूसरे की तरफ देखा तो सालार अहमद कहने लगा, सितारा, मैं वहाब मीर के दोस्त का बेटा नहीं हूँ बल्कि उनका सगा बेटा हूँ। फिर उसने अपनी कहानी बयान करना शुरू कर दी तो सितारा हैरानगी से कभी उसको और कभी मूसा को देखती और कभी तो शर्मिंदगी से अपना मुंह छुपा लेती। मूसा और सालार उसको चांदनी, अबीद रज़ा और बादशाह समेत शमा बीबी की भी दास्तान सुनाने लगे। कई अल्फाज बयान करते वक्त तो मूसा और सालार अहमद रोने भी लगे थे और कई अल्फाज सुनकर सितारा शर्मिंदगी से अपना सर झुकाकर रोने लगती। मुलाजिम कप का कॉफ़ी रख कर जा चुका था। कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन सालार अहमद ने दुख भरे अंदाज में चांदनी और अबीद रज़ा की बात सुनाई तो सितारा की आंखें छलकने लगी थी। फिर सालार ने बताया कि आज रात को उसका चांदनी के साथ निकाह है और सितारा उसको भाभी बनाकर घर लेकर जाएगी। तो वो दुखी अंदाज में सालार की तरफ देखने लगी थी। क्या तुम मेरे साथ इस घर में रहना चाहोगी सितारा? सालार ने उसकी आंखों में देखकर पूछा तो वो आंसुओं को बहाती हुई बोली, सालार भाई, मैं मामा पापा के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ सकती। सालार ने उठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, सितारा, मेरे घर के दरवाजे मेरे दिल की तरह तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। सितारा ने रोते हुए सर झुका लिया था। उसको हिना बेगम के किरदार से नफरत होने लगी थी। वो सोच भी ना सकती थी कि उसकी माँ उसके बाप को धोखा दे रही है, और वो भी अपने 3rd क्लास कजिन के साथ गंदा खेल खेल कर। चांदनी यकीनन खुशकिस्मत थी जो माँ और बाप की मोहब्बत और दुआओं के साए में रुखसत हो रही थी। सादगी से निकाह तो हो गया था, लेकिन गुरु और नैना ने उसके लिए जो लहंगा बनवाया था वो कामदार भी था और काफ़ी कीमती भी था। उन्होंने चांदनी को रुखसत किया तो हर आंख अश्कबार हो गई थी। सितारा भी भाई की शादी में शामिल थी। बादशाह और शमा भी रो रहे थे, लेकिन इन दोनों को ही सुकून था कि चांदनी गैर के घर नहीं बल्कि सालार के घर जा रही है और सालार उनका अपना था। चांदनी ने भी रुखसती के वक्त उन सब से माफ़ी मांगी थी। गुरु ने उसको सीने से लगाकर प्यार किया था और नैना ने तो बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा था
चांदनी, हमने तुम्हें जिस तरह रखा और जिस तरह परवरिश की और आज जिस माहौल में जिस तरह तुम्हारी रुखसती कर रहे हैं, अगर कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ कर देना। लेकिन चांदनी ने उसको सीने से लगाया और फिर नैना के हाथ चूमते हुए उनको आंखों से लगाया और बोली, इन हाथों ने तो मुझे खाना खिलाया है, उंगली पकड़कर पाँव पाँव चलना सिखाया है। ये हाथ अगर मेरे सर पर होते तो न जाने मैं कहाँ कहाँ ख्वार और जलील हो रही होती। अगर मेरे सर पर ना होते तो न जाने मैं कहाँ कहाँ ख्वार और जलील हो रही होती। चांदनी ने सबको रुला दिया था, लेकिन मूसा ने उसको हंसा दिया। बाजी बड़ी मेसनी निकली हो, सालार जैसा दूल्हा पसंद कर लिया है। इसका अंदाज गुरु जैसा था। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। शम्मा और बादशाह ने उसको रुखसत करके सालार को प्यार दिया और सदा खुश रहने की दुआएं दी। गाड़ी सालार अहमद और चांदनी को लेकर चली गई तो मूसा ने सितारा का सबसे तारुफ करवाया। वो भी अपने बाप के रिश्तेदारों को मिलकर खुश हो गई थी। फिर वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर घर की जानिब चल दी, क्योंकि अब जो तमाशा उसके घर में होने वाला था वो उसके लिए जहनी तौर पर तैयार थी। साला और चांदनी रास्ते में आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए थे, इसीलिए वो और सितारा इकट्ठे ही घर में दाखिल हुए थे। सालार वाली गाड़ी जो कि फूलों से सजाई गई थी, इसलिए हिना बेगम और वहाब मीर हैरानगी से उस गाड़ी को देख रहे थे, जबकि अबीद रजा भी लॉन में टहलता हुआ पोरच में पहुंच गया था। पिछली गाड़ी से सितारा ने निकल कर आकर सालार वाली गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला तो सालार अहमद बाहर आया। वो दूल्हे के लिबास में था। जबकि चांदनी को उतारा गया तो सबके दिलों पर बिजलियां गिर गई, क्योंकि उसने एक शान से वहाब मीर और हिना बेगम की तरफ देखा था और फिर उसकी नज़रें अबीद रज़ा पर जम गई तो वह हैरत के समंदर में गौते खाता हुआ चांदनी और सालार की तरफ देखने लगा था। मैंने शादी कर ली है अबू जी, और चांदनी मेरी बीवी है। इस घर में आने के बाद पहली बार सालार ने वहाब मीर को उनकी फैमिली के दरमियान अबू जी कहा था। अबीद रज़ा हैरान था, जबकि वहाब मीर शर्मसार थे। तुम्हें यही लड़की मिली थी शादी के लिए, हिजड़ों के गोद में पलने वाली, गंदे और नीच खानदान की? वहाब मीर गुस्से की शिद्दत से थरथर काँप रहे थे। उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। सालार आगे बढ़ा तो चांदनी ने उसका हाथ पकड़कर दबाया और खुद 2 कदम चलती हुई सेठ वहाब मीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। आपने और आपके बेटे ने मेरी मोहब्बत का जितना मजाक उड़ाना था उड़ा लिया, और मुझे ठुकरा कर आपने साबित करने की कोशिश की कि मैं इस घर और आपके काबिल ही ना थी, क्योंकि मेरा ख़ानदान नीच और घटिया है। इसमें शक भी नहीं है लड़की, और वैसे भी मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। वह मीर गरजे थे। अबीद रज़ा का सर निदामत से झुका हुआ था। आप फिक्र नहीं करें, मेरा नीच और घटिया ख़ानदान मेरे साथ ही आया है। आपको अभी पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा नीच और घटिया आप है। वह मीर चांदनी की घनगरज सुनकर दम-बखुद हो गए थे और वो अपनी तौहीन के एहसास से लाल सुर्ख हो गए थे। उन्होंने आगे बढ़कर चांदनी पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन उनके बाजू को सालार ने फिजा में ही पकड़ लिया। सालार, ये क्या ड्रामा है सालार भाई? पहली बार अबीद रज़ा ने ज़बान खोली तो चांदनी उसकी तरफ देखती हुई फनकारी। ड्रामा? ड्रामा तो तुमने मेरे साथ किया था अबीद रज़ा। अबीद रज़ा हौक बना हुआ खामोश हो गया था। तुमने मुझे ठुकरा कर कोई तीर नहीं मारा था, बल्कि ज़रा ये सोचो कि मेरी तकदीर लिखने वाले ने तुम जैसे कमज़र्फ़ और घटिया इंसान को मेरी तकदीर में ना लिख कर साबित कर दिया कि तकदीर के फ़ैसलों पर वक्ती तौर पर अफसोस करने वालों वो हमेशा बेहतर और अच्छा ही फ़ैसला करता है। तुम जैसा जलील शख्स मेरे काबिल ही ना था। अबीद रज़ा निदामत से पानी पानी हो रहा था। सालार ने भी चांदनी को फ्री हैंड दिया हुआ था। वो उसको लेकर कमरे में पहुंचा तो अपनी माँ की फ़ोटो को सलाम करके चांदनी का तारुफ करवाने लगा। चांदनी ने मुस्कुरा कर वो फ़ोटो सीने और आंखों से लगाई तो सालार भी उसको ममनून नज़र से देखने लगा। सालार के मोबाइल पर बेल हुई तो उसने देखा कि मूसा की कॉल थी, जिसका मतलब था कि वो सब लोग नीचे पहुंच गए हैं। चांदनी और सालार नीचे पहुंचे तो ड्राइंग रूम में बादशाह और वहाब मीर आमने सामने खड़े थे। चांदनी बादशाह के पास आई तो बादशाह ने उसको सीने से लगाया और बोला, मुझे पहचानते हो वहाब मीर? वहाब मीर को मरने के लिए ज़मीन ना मिल रही थी। वो मर मर कर मिट्टी हो रहा था। ये मेरी बेटी चांदनी है। बम फट गया। ये गंदे और नीच खानदान की बेटी है और गंदे खानदान में ही आ गई है। बादशाह छोटे भाई के सामने खड़ा था। वो बेटी वाला था, लेकिन उसका सीना फख्र और गुरूर से खड़ा हुआ था। मेरी दौलत और जागीर पर काबिज होकर तुमने मेरे ही कारोबारी शरीकों की बेटी से शादी रचाकर मुझे तो जीते जी मार दिया था। बादशाह कह रहा था और अबीद रज़ा उसको पहचान गया था कि चंद माह पहले उसकी गाड़ी से ज़ख्मी होने वाला ये फ़कीर था, जिसकी बीनाई जाने के खदशे से वह अस्पताल से भाग आया था। वो बादशाह से नज़र चुरा गया। हालांकि बादशाह तो उसको पहचान ही ना सकता था। वो तो उस वक्त अंधा था और अबीद रज़ा की गाड़ी की टक्कर ने तो उसकी बीनाई जैसी नेमत लौटा दी थी।
गुरु, नैना, शमा बीबी, मूसा, चमेली और इलायची इस वक्त वहाँ जमा थे और बादशाह बोल रहा था, वहाब मीर, तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन तुमने मेरी पीठ में जो छुरा घोंपा है, मुझे उसकी तुमसे उम्मीद ना थी। भाई तो भाइयों का साया होते हैं, लेकिन शायद किसी ने तुम जैसे कमज़र्फ और धोखेबाज भाई के लिए क्या खूब कहा है कि हसरतों के जनाजे कंधों पे उठाए चलते रहे हम, खुद ही आगे कभी पीछे कंधा बदलते रहे हैं। मस्तरब हमारा ही साया था हमसे लिपटने के लिए, जिसके दामन में खंजर देख कर डरते रहे हम। बादशाह के आंसू बह निकले थे। चांदनी ने अपने हाथ से आंसुओं को साफ किया तो बादशाह फिर कड़ाकेदार आवाज़ में बोला, वहाब मीर, सुबह जब मेरी बेटी नई जिंदगी की सुबह का सूरज देखे तो तुम उसको इस घर में नजर मत आना, नहीं तो याद रखना सारी जिंदगी धोखाधड़ी के जुर्म में जेल में चक्की पीसते हुए गुजर जाएगी। बादशाह ने इतना कहकर चांदनी के माथे पर बोसा दिया और बोला, सदा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें गर्म हवा भी न लगने दे। चांदनी शमा की जानिब बढ़ी तो उसने भी रोई हुई आंखों से चांदनी का माथा चूमा और बोली, तुम इस वक्त दुश्मनों के घर में हो, अपना ख्याल रखना। वो सब लोग बारी बारी चांदनी को प्यार भरी नसीहतें करते हुए वहाँ से रुखसत हुए तो मूसा ने सालार को सीने से लगाया और कान में सरगोशी की। अबीद रज़ा की किसी भी किस्म की चालाकी से होशियार रहना सालार ने इस बात में सर हिला दिया। वो सभी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए तो सितारा ने आगे बढ़कर चांदनी का हाथ पकड़ा और उसको कमरे तक ले गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया सालार, वहाँ मीर शिकस्त खुर्दा लहजे में बोले थे। दौलत, ताकत और जवानी के नशे में इंसान अगर अय्याशी करे या गुनाह करे तो लोग कहते हैं कि माँ बाप की कमाई है, ऐसे ही उजड़ेगी। लेकिन अगर इंसान बुढ़ापे में जवान औलाद के सामने या औलाद के मौजूद होते भी गंदगी खाए तो फिर उसके साथ ऐसा ही होता है। उसने आखिरी अल्फाज हिना बेगम को देखते हुए कहे तो उसका रंग खौफ से फक हो गया था। तुमने भी मुझे धोखा दिया है सालार, वहाँ मीर उसे नजरें ना मिला पा रहे थे। मैं आपका बेटा हूँ अब्बू जी, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें हमेशा के लिए, लेकिन इस औरत के बगैर। सूरज अगर कहे कि मैं मगरिब से निकलूँगा तो भी हिना बेगम को नहीं छोड़ सकता, तो फिर ठीक है, सुबह तक जैसा कि ताया अब्बू ने कहा है आप लोग इस घर को छोड़ जाएं। वो आपके साथ क्या करेंगे वो आपको बता गए हैं। और हिना बेगम की तरफ मुड़ा और उनके सामने खड़ा होता हुआ बोला, जो मैं आपके साथ करूँगा वो बताऊँगा नहीं, बल्कि अगले दिन के अखबारात और टीवी चैनल्स बताएंगे। हिना बेगम सर तपा लरस कर रह गई थी, जबकि अबीद रज़ा को मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी ना मिल रहा था। वो सालार से नजरें ना मिला पा रहा था क्योंकि सालार अब उसकी तरफ मुड़ा था। तकदीर का एक उसूल अपना लो तो ज़िंदगी कामयाब गुजरेगी, किसी को भी मज़हब के नाम पर धोखा मत देना। मज़हब, अबीद रज़ा मुर्दा आवाज़ में इतना ही कह पाया था। हाँ अबीद रज़ा, मोहब्बत भी तो मज़हब है, और ये वो मज़हब है जिसकी बुनियाद हमारे दीन में शामिल है। और मेरा दीन ये कहता है कि नमाज और रोज़ा तोड़ने का तो कुफारा हो सकता है, लेकिन दिल तोड़ने का कोई कुफारा नहीं होता। सालार वापस जाने के लिए मुड़ा और फिर रुक गया। अगर तुम अपनी भाभी से मिलना चाहो तो आखिरी मुलाकात कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। अभी रज़ा तड़प कर वहाँ से चला गया था, जबकि सालार अहमद तंजिया अंदाज में हिना बेगम को हथेली की घड़ी का इशारा करते हुआ बोला, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये कहकर वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा तो सितारा चांदनी से बातों में मसरूफ़ थी। वो सालार अहमद को देखकर फौरन खड़ी हो गई तो बोला, सितारा शुक्रिया बेटा। वो हैरानगी से भाई की तरफ देखते हुए बोली, शुक्रिया क्यों सालार भाई? सालार ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और कहने लगा, तुमने अब्बू और अम्मी की मुखालिफत में मुझे सपोर्ट किया, मैंने आपको नहीं सच को वोट दिया है भाई, और सच्चाई हमेशा ही से जीतती आई है। सितारा, मैं चाहूँगा कि तुम हमारे साथ रहो इस घर में, मैं तुम्हारी शादी करूँगा एक भाई और बाप बनकर। सितारा को सालार की मोहब्बत भरे लहजे और पुरखुलूस अल्फाज पर यकीन था। वो उठी और उसके हाथ पकड़ कर बोली, आप मुझसे एक वादा करें सालार भाई, हुक्म करो। वो फिर प्यार से बोला था, आप वो फिल्म, मेरा मतलब है कि हीरा वाली फिल्म, अपने तक ही रखेंगे, पापा को कभी भी इल्म ना होगा। सितारा समझदार और बाशऊर लड़की थी, उसने माँ का राज राज ही रखने की दरख्वास्त की थी। सालार अहमद मुस्कुराता हुआ बोला, वादा करता हूँ कि वो राज मेरे सीने में आज और अभी से दफन हो गया है। सितारा ने तशक्कुर आमेज़ निगाहों से सालार की तरफ देखा और आंसुओं की ज़बान में उसने चांदनी और सालार को खुदा हाफिज़ कहा और कमरे से बाहर निकल गई।
سالار احمد چاندنی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور چاندنی نے بھی شرم سے نظریں جھکا لی تو وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، چاندنی، مجھے آج سے کئی سال پہلے اسی کمرے سے نکالا گیا تھا۔ چاندنی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کو سہلاتا ہوا بول رہا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے تم جیسا جیون ساتھی ملے گا۔ کیا تم نے کبھی سوچا تھا چاندنی؟ چاندنی نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ قربان ہوتا ہوا لیٹ گیا تو وہ بولی، سالار، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ جیسا محبت کرنے والا اور پرخلوص پیار دل میں رکھنے والا میرا جیون ساتھی بن سکتا ہے۔ سالار، ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ چاندنی کا انداز سوالیہ تھا اور الفاظ بتا رہے تھے کہ لہجہ کچھ ڈرا ڈرا اور خوفزدہ بھی ہے۔ سالار نے اس کے ہاتھ پر ایک محبت کی مہر ثبت کی تو وہ حیا اور شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ چاندنی، آج جو بھی دل میں ہے اس کو باہر نکالو۔ آج میں ہوں اور بس، اور تم ہو بس۔ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا سالار۔ چاندنی نے پھر بھی اپنی بات کر دی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں میں دیکھتا ہوا بولا، کہو میری جان۔ چاندنی اس کی اس ادا پر قربان ہو گئی اور بولی، سالار، عبید رضا نے مجھے ٹھکرا دیا، آپ نے مجھے اپنا لیا۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ سالار نے اس کو دلاسا دیا، لیکن اب تو نہیں کرتی ہونا، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں چاندنی۔ تمہیں محبت سے جیتنا ہی میرا خواب تھا، اور دیکھو کہ میری محبت بھی میرے خواب کی طرح سچی نکلی، اور آج تم میری جان بن کر میرے دل پر راج کرنے کے لیے میرے سامنے بیٹھی ہو۔ آپ وعدہ کریں کہ زندگی میں کبھی بھی مجھے عبید رضا کے نام کا طعنہ نہیں دیں گے۔ چاندنی نے اس کے بالوں میں اپنی نرم اور مخروطی انگلیاں پھیری تو وہ ایک دکھ سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، چاندنی، میں کم ظرف نہیں ہوں، میرا ظرف سمندر سے بھی وسیع ہے، مجھ پر اعتماد کرو چاندنی۔ چاندنی نے اپنا آپ اس کے چہرے پر جھکا لیا تو وہ بولا، ارے یار، ایک کام تو رہ ہی گیا۔ اس نے اٹھ کر چاندنی کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور کوٹ کی جیب سے ایک نیکلس نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے اپنا ہاتھ ہٹایا تو چاندنی کھلکھلا کر ہنستی ہوئی بولی، یہ کیا سالار؟ ارے یار، لیٹ ہو گیا ہوں، منہ دکھائی ہے یہ۔ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے، جبکہ عبید رضا کے دل پر آج کی رات چھریاں چل رہی تھی، لیکن اپنے قتل میں اسی کا ہاتھ ہی ملوث تھا۔ دوسری طرف شمع بی بی نے مناہل کا سامان ایک بیگ میں ڈالتے ہوئے اس کو سمجھانا شروع کیا، تم فائزہ اور شکیل احمد کو کوئی بھی بات نہ بتانا، جیسے ہی شرجیل والا معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تمہیں لے آؤں گی۔ مناہل نے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، خالہ، میں جانا نہیں چاہتی۔ شمع بی بی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو خود ہی اپنی آنکھیں شرم سے جھکاتی ہوئی بولی، میری بچی، ہیرا بدماش ایک چھٹا ہوا گنڈا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں دوبارہ آ کر تم سے بدتمیزی کرے، لیکن آپ بھی تو اکیلی ہے خالہ، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ وہ التجائی انداز میں بولی تھی، میری بچی، تم ماں بننے والی ہو، اور ایسی حالت میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی دکھ اور صدمہ تمہیں چھوئے۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر میں خود تمہیں لینے آؤں گی۔ انہوں نے ایک بار پھر مناہل کی منت کی تھی، وہ اپنے ماں باپ اور شرجیل کی کوئی بھی بری حرکت کا نہ بتانا۔ مناہل نے ان باتوں کو غور سے سنا تھا، پھر اندر سے موسیٰ آیا تو شمع بی بی نے اس کو بیگ پکڑا دیا اور کہا، لو بھائی موسیٰ، مناہل کو گھر کے اندر چھوڑ کر آنا، فائز اور شکیل کو میرا سلام کہنا۔ شمع بی بی کی آواز بھرا گئی تھی۔ موسیٰ نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے مناہل کا بیگ پکڑا اور مناہل کی طرف شرمندہ نظروں سے دیکھا تو وہ شمع بی بی کی جانب بڑھی تو بولی، خالہ جان، اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے شمع بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے تڑپ کر اس کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، مجھے شرمندہ تو نہ کرو مناہل، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں، قصور میرا ہی تھا، بس تم دعا کرنا کہ سب کچھ بہتر ہی ہو۔ وہ جلدی سے جلدی مناہل کو اس گھر سے بھیجنا چاہتی تھی کیونکہ ہیرا بدماش کبھی بھی آ سکتا تھا۔ مناہل موسیٰ کے ساتھ باہر نکلی اور پھر اپنے گھر کے لیے ٹیکسی میں روانہ ہو گئی۔ دروازے پر دستک سن کر شمع بی بی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ہیرا آ گیا ہے۔ انہوں نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں، رضیہ بہن، علی حیدر کونسلر۔ شمع بی بی نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی کیونکہ علی حیدر بھلکڑ تھا، وہ آج کئی مہینوں بعد ادھر کا راستہ بھول گیا ہوگا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اس کو اندر آنے کا کہا تو مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے سلطانہ بہن، آج بہت خاموشی ہے، رضوان اور اکبر کہاں گئے ہیں؟ وہ یقیناً موسیٰ اور شرجیل کا پوچھ رہا ہوگا۔ شمع بی بی نے مسکراتے ہوئے ایک موہڑا اس کو بیٹھنے کے لیے پیش کیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ انہوں نے مٹھائی کی پلیٹ بھری اور لا کر علی حیدر کونسلر کے سامنے رکھ دی تو مسکراتا ہوا بولا، واہ واہ بہن، لگتا ہے کہ اشرف کی منگنی کر دی ہے آپ نے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، ہاں بھائی،
علی حیدر، میں نے موسیٰ کی منگنی کر دی ہے۔ وہ رسگلہ منہ میں رکھ کر اس کا رس نگلتا ہوا بمشکل بولا، بھائی انوری بہن، آپ کو مبارک ہو، اللہ ایسی نیک اولاد سب کو دے۔ اس نے ابھی یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ دروازہ ایک دھماکے سے بجا۔ ہیرا اپنے حواریوں کے ساتھ آدھمکا تھا۔ علی حیدر کونسلر نے بھی اس کو خوف سے دیکھا اور پھر اس نے خوفزدہ شمع بی بی کو دیکھا تو بولا، ابے ہیرا بدماش، تمہارا اس شریف گھر میں کیا کام ہے بھائی؟ ہیرا اس کی طرف دیکھتا ہوا مسکرانے لگا اور پھر مٹھائی کی پلیٹ دیکھ کر اس کی جانب لپکا اور مٹھائی منہ میں رکھتا ہوا بولا، کونسلر صاحب، ہیرا کا جہاں حساب کتاب ہو وہاں اس کا آنا جانا تو رہتا ہی ہے۔ تمہیں اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ہیرا۔ شمع بی بی خوفزدہ آواز میں بولی تو وہ اپنے حواری سے کہنے لگا، جاؤ مکھن، اندر جا کر اپنا مال لے آؤ، ہماری اس بڑھیا سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ مکھن اندر کی جانب بڑھ گیا تو شمع بی بی نے سکون کی سانس لی کیونکہ وہ ابھی مناہل کو بھیج چکی تھی۔ لیکن ارشد بدماش، یہ تو بتاؤ، اس گھر میں پولیس والوں کی طرح بغیر ہی پچھے دست سے چھاپا کیوں مارا ہے تم نے؟ علی حیدر آگے ہوتا ہوا بولا تو ہیرا کہا لگا کر بولا، کونسلر اسماعی کے بیٹے نے جوئے میں اپنی بیوی ہاری ہے اور آج اس کا وعدہ تھا کہ وہ پیسے دے گا یا پھر اپنی بیوی کی باہ میرے ہاتھ میں پکڑائے گا۔ کچھ تو شرم کرو۔ شمع بی بی آگے بڑھتی ہی بولی، کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ مائی جواریوں کی کوئی ماں بہن نہیں ہوتی۔ ہیرا گھرایا تو علی حیدر ہنستا ہوا بولا، تمہیں پھر علم ہی نہیں ہے، جتنی جواریوں کی ماں بہن ہوتی ہے اتنی کسی کی نہیں ہوتی۔ ہیرا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو وہ سہم گیا۔ اندر سے مکھن نے آ کر خبر سنائی، پہلوان جی، پورے گھر میں صرف یہ مائی ہی ہے بس۔ ہیرا کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ کھا جانے والی نظر سے شمع بی بی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، مائی کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ میں یہاں بیٹھا ہوں بس۔ وہ ایک موہڑے کو لات مارتا ہوا تخت پوش پر براجمان ہو گیا تو شمع بی بی خوفزدہ ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، میں دوں گی تمہارے پیسے، تم مجھ سے آ کر لے جانا پیسے۔ کب؟ وہ اس بار خلاف توقع تحمل سے بولا تو شمع بی بی حوصلہ کرتی ہی بولی، اگلے ہفتے ضمانت دیتی ہوں۔ ہیرا ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں ہاں ہیرا پہلوان، آپ مجھ سے پیسے لے جانا۔ شمع بی بی چاہتی تھی کہ وہ ابھی یہاں سے چلا جائے۔ دیکھ لو اور سوچ لو مائی کہ اگر ہمیں مال نہ ملا تو ہم ضمانتی کو لے جاتے ہیں۔ ہیرا تخت پوش سے اٹھتا ہوا بولا تھا، ہاں ہاں ٹھیک ہے ہیرا پہلوان، ٹھیک ہے۔ ہیرا نے علی حیدر کی طرف دیکھا اور بولا، تم گواہ رہنا کونسلر، اسماعی نے ضمانت دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے حواریوں کو اشارہ کرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ شمع بہن، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ علی حیدر نے پہلی بار ان کا صحیح نام لیا تھا۔ یہ لوگ بہت گندے ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی عزت تو ہوتی نہیں، لیکن یہ دوسروں کی عزت کو بھی عزت نہیں سمجھتے۔ میں کیا کرتی بھائی؟ وہ رونے لگی تھی۔ اس کا زیادہ دیر میرے گھر میں ٹھہرنا مجھے بدنام کر سکتا تھا۔ وہ تو ہے ہی برا اور بدنام، لیکن میں بھی بدنام ہو جاتی تو اس بڑھاپے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ علی حیدر کی سمجھ میں بات آ گئی تھی۔ وہ پہلی بار شمع بی بی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، فکر نہ کریں، مجھ سے جتنا بھی ہوا میں ضرور کروں گا، اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا۔ یہ کہہ کر علی حیدر ان کے گھر سے نکل گیا۔ لیکن شمع بی بی رو رو کر شرجیل کو بددعائیں دینے لگی تھی، اللہ کرے کہ تو میرا مری کا ہی منہ دیکھے، تجھے نصیب ہی نہ ہو کہ تم مجھ سے زندگی میں آ کر ملو۔ وہ شرجیل کو بددعائیں دے رہی تھی اور ان کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ پھر ان کو چکر آنے لگے تو وہ تیورا کر گر پڑی اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئی۔ موسیٰ مناہل کے ساتھ فائزہ کے گھر میں داخل ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ شکیل اور فائزہ مناہل کے بچے کے لیے کچھ خریداری کرنے بازار تک گئے ہیں۔ یہ اطلاع دینے والی تحریم تھی جو موسیٰ کو دیکھ کر مہک اٹھی تھی، لیکن مناہل کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ غمگین ہو گئی تھی۔ اس نے مناہل کو بیٹھنے کے لیے کرسی دی تو موسیٰ نے خود کو صوفے پر گرا لیا تھا۔ خیریت تو ہے آپی؟ وہ مناہل سے پوچھتی ہوئی موسیٰ کی طرف دیکھنے لگی تو موسیٰ کی نظریں جھک گئیں۔ موسیٰ، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ آپی تو پریشان لگ رہی ہے۔ موسیٰ مسکرانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یار ابھی تو آئے ہی ہے، نہ پانی نہ چائے، بڑی کنجوس ہو تم تو۔ موسیٰ، تم اچھے اداکار نہیں ہو۔ تحریم بولتی ہوئی وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی تو مناہل نے موسیٰ سے کہا، خالہ جان نے منع کیا ہے کہ کسی کو بھی شرجیل کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ موسیٰ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے بھابھی، آپ فکر نہیں کریں۔ مناہل اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی تو تحریم آدھم کی وہ موسیٰ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں سیب تھے اور دوسرے ہاتھ میں خالی پلیٹیں اور چھری تھی۔ کیسے ہو؟ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ تحریم موسیٰ کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو پرسوک مسکان ہونٹوں پر سجاتا ہوا بولا، زندگی ایسا بوجھ ہے تحریم، جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھانا پڑتا ہے اور بغیر رکے اور بغیر سانس درست کیے منزل کی جانب بڑھتے رہنا ہی زندگی کے ہونے کی دلیل ہے۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ آگے اور اس میں کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔